Hi everyone, this is Dhananjay sir and welcome to my online class. I am present here with a new chapter of environmental study, chapter number 8, and the title of this chapter is Plants and Their Leaves. Plants and their leaves. This is the first part of this chapter, chapter number 8, plants and their leaves. It means in this chapter we will learn about different types of plants and about different types of their leaves. In this chapter, approx 5 or 6 subtopics. In this chapter, we will learn about uh, in this chapter we will learn about the various types of plants, about various types of plant. Second, this is the first subtopic of this chapter. We will learn about various types of plants. Second subtopic is we will learn about the usage of plants, about the usage of plants. So through this video, I am going to teach you about these two subtopics of this chapter number 8, plants and their leaves, about various types of plants and about the usage of plants. हम लोग इस वीडियो के द्वारा इस क्लास में हम लोग ये सिर्फ ये दो सब टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे. There are approx 6 subtopics of this chapter, but through this video we will discuss about various types of plants and we will discuss about the usage of plants. So let's start this class. In first topic about various types of plants, we know that plant play an essential role for our life, for our daily life, because we know that plant is also a living things. Plant is also living things, and this is the most important things for humans and other living things also. We know that there are so many different types of plants found around us. We can see that so many different types of plants around us, and uh, they have some different characteristics. They have some different characteristics. They have some different physical structures. Their physical structure from each other. So let's start these things about various types of plants. Already all of you have studied about plants around us in class 2 also. So this is not a new thing, but once again we will study about this plant. Okay, we know that various. You can see that I have written about various. Various means अनेक प्रकार के. There are numerous plants around us. हम लोग के अगल बगल चारों तरफ हम बहुत अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के जो है प्लांट्स देखते हैं. तो कौन कौन से प्लांट्स देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं there are 5 or 6 types of plants. They are tree, shrubs, herbs,
creepers. Trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. These 1, 2, 3, 4, 5 types of plants found around us. ये 5 अलग अलग प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं. अब ये क्या है? ट्री, shrubs, herbs, climbers and creepers. ये क्या है? अब इसके बारे में पढ़ेंगे. So first is tree. What is tree? Tree is a tall and strong plant. Tree is a tall and strong plant. A tall and strong plant is called a tree. Okay. A tall and strong plant is called a tree. मतलब and they have many branches and one main and it has a trunk. It has a strong woody stem is called trunk. हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि देयर आर 5 और 6 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. एक प्लांट में 5 और 6 पार्ट होता है. तो प्लांट, अब ट्री का जब बात करेंगे तो अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट इज कॉल्ड अ ट्री. एक लंबे से स्ट्रॉन्ग प्लांट को क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं. इट हैज ए स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक. आप लोग देखते हैं, जब पेड़ देखते हैं तो पेड़ का जो स्टेम जो होता है, ब्रॉड स्टेम, दैट इज कॉल्ड ट्रंक. उसको ट्रंक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, अब हम लोग देखते हैं एक पेड़ में जो होता है बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं. ब्रांचेज मतलब उसकी टहनियां, डालियां जिसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, बेनियान ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है. क्या क्या? तो मैंगो ट्री, बेनियान ट्री, नीम ट्री. These are some examples of tree. Okay, ये कुछ एग्जाम्पल है. तो ट्री किसे कहते हैं? तो a tall and strong plant is called a tree. एक लंबे से स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं. It has a strong woody stem. स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम होता है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. ट्रंक जो बीच का जो जिस पे प्लांट खड़ा रहता है और वो देखते हैं उसका ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है उसका स्टेम, दैट इज कॉल्ड अ ट्रंक. उसको ट्रंक बोलते हैं, स्टेम. नेक्स्ट इज देखिए, बनाते हैं. These part are called trunk. इस पार्ट को जो है ट्रंक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इस पार्ट को ट्रंक बोलते हैं. ये रूट इज स्टेम, बट प्लांट में इसको ट्रंक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. एंड लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. Next type of plant is what? Next type of plant is shrubs. SHRUBs.
shrubs, when we compare these shrubs to plant, the size is length. This length और size is small as compared to tree. अगर हम ट्री से इसका कंपेयर करें तो इसका जो हाइट जो होता है वह प्लांट से कम होता है, लेकिन ये क्या है, तो ये स्मॉल में आते हैं। देखिए प्लांट होते हैं दो तरह के, एक होते हैं स्मॉलेस्ट, एक होते हैं मीडियम और एक होते हैं लार्ज। तो ट्री जो होता है वो लार्ज में आता है, ट्री जो होंगे जितने भी ट्री होते हैं वो लार्ज में आते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, तो श्रब्स क्या है, तो स्मॉल प्लांट with woody stem thin woody stem लिखते हैं, ओके, thin woody stem। श्रब्स यही है, श्रब्स क्या है, अ स्मॉल प्लांट विद थिन वुडी स्टेम। यह जो होता है ट्री के मुकाबले इसका जो हाइट जो होता है, साइज, वो छोटा होता है, एंड इट ग्रोज जस्ट एबव द ग्राउंड, थोड़ा सा ही ऊंचाई पे ये उपजते हैं। और इसका जो स्टेम जो होता है वो थिन वुडी स्टेम होता है। थिन मतलब थिन वुडी स्टेम, मतलब इसका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, मतलब वो कठोर दिखता है लेकिन वो पतला होता है, थिन होता है, वो पेड़ की ट्री की तरह मजबूत नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल ऑफ श्रब्स। रोज, कॉटन, लेमन, हिबिस्कस, तुलसी। These are some examples of shrubs. Rose plant, cotton plant, lemon, hibiscus and tulsi. These are some examples of shrubs. आप लोग देखते होंगे, तुलसी का पौधा देखें या कॉटन प्लांट या रोज का प्लांट देखें, देखते उसका हाइट ज्यादा नहीं होता है और उसके जो ब्रांचेज होते हैं वो वुडी होते हैं लेकिन वो पतले होते हैं। तो these are some example of shrubs. Now next is herbs. Herbs, H-E-R-B-S, herbs। herbs किसको बोलते हैं, herbs किसको बोलते हैं, a very small plant with soft green stem। हर्ब्स क्या होता है, अ वेरी स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। उसका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। और वो अब हम इसका हर्ब्स का कंपेयर अगर सब से करेंगे तो ये उससे भी छोटा होता है। अब इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अ वेरी स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, इसलिए मैंने लिखा है अ वेरी स्मॉल और शॉर्ट प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। इसका स्टेम कैसा होता है, तो सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है। फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल ऑफ हर्ब्स। फॉर एग्जांपल व्हाट, स्पिनेच, SPINACH, स्पिनेच, कोरिएंडर, ग्रास। These are mint. One more thing, mint. So spinach, coriander, grass and mint, these all are example of herbs। आप लोग देखे होंगे ग्रास, तो ग्राउंड पे ग्रास देखते ही हैं, देखते हो जब ग्राउंड से सटा रहता है। दूसरा, इसका जो स्टेम जो उतना
एकदम नाजुक होता है। आप लोग देखिए कोरिएंडर, कोरिएंडर देखें, कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती इसको बोलते हैं। स्पिनच, पालक का साग देखें तो ये लोग देखते हैं तो सॉफ्ट होता है, हल्का सा थोड़ा सा भी जोर लगाते तो ये आराम से टूट जाता है। मिंट, पुदीना का पत्ती देखें आप लोग, ये सब यूज करते हैं हम लोग खाने के लिए। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स का क्या मैंने बताया, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। इसका स्टेम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रीन सॉफ्ट होता है। कोरिएंडर का मतलब क्या होता है, धनिया का पत्ता। आप लोग देखिए चटनी के रूप में यूज करते हैं, मिंट को देखिए चटनी के रूप में यूज करते हैं, पालक साग खाने में यूज करते हैं लोग। तो ये सभी चीजों ये हम लोग क्या करते हैं, तो ये these all are example of herbs. Next is climbers. क्लाइंबर्स नाम से ही समझ में आता है। क्लाइंबर का मतलब क्या होता है, जो चढ़ता है। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना। क्लाइंब का मतलब चढ़ना, क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाला। तो क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाला क्या होता है, अ प्लांट विद weak stem, weak stem and does not and sorry do not stand straight. They need to they need they need to support to grow or stand straight. Climbers, a plant with weak stem and they do not stand straight. They need to support to grow and stand straight. मतलब क्लाइंबर जो होते हैं उसका जो स्टेम जो होता है वो काफी कमजोर होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है, कमजोर। वो सीधा नहीं खड़ा रह सकते। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एंड डू नॉट स्टैंड स्ट्रेट। वो सीधा नहीं खड़ा रह सकते। दे नीड टू सपोर्ट टू ग्रो एंड स्टैंड स्ट्रेट। अगर वो चाहते हैं कि वो वृद्धि करे, ग्रो करे और वो सीधा स्ट्रेट खड़ा, मतलब स्टैंड स्ट्रेट का मतलब सीधा खड़ा रहे, तो उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ता है। किसके, किसी चीज का सहारे की जरूरत पड़ता है। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे प्लांट है जो दीवार के द्वारा वो बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, या तारों पे या किसी दूसरे प्लांट की सहायता से वो जो है ऊपर की ओर चढ़ते हैं। क्लाइंबर मतलब मैंने क्या बताया, चढ़ने वाले, जो ऊपर चढ़ते हैं। A plant with weak stem and do not stand straight, वो सीधा खड़ा नहीं रहते। They need to support, उनको सहारे की जरूरत है। इसलिए to grow and stand straight, सीधा खड़ा रहने के लिए या ग्रो करने के लिए उसे सहारे की जरूरत पड़ता है। जैसे किसका सहारा लेगा, तो दीवार की सहायता से वो चढ़ सकते हैं, या तार लगा रहता है, वायर लगा रहता है, उसकी सहायता से चढ़ सकते हैं, या किसी दूसरे प्लांट की सहायता से चढ़ सकते हैं। मतलब जो अगर उसको किसी भी चीज का सपोर्ट मिलेगा तो क्लाइंबर्स ग्रो क्विकली, आराम से वो ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल बीइंग मनी प्लांट, so beans and money plants are example of climbers. ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लाइंबर्स के। इनका जो आप लोग देखते हैं, इसका स्टेम कैसा होता है, इसका स्टेम वीक होता है, कमजोर होता है, वो खड़ा ही नहीं रह सकते। लेकिन अब उनको वृद्धि करने के लिए दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट मतलब क्या होता है, सहारा। नेक्स्ट इज क्रीपर्स। नेक्स्ट इज क्रीपर्स। क्रीपर्स
Creepers has also weak stem. Thin, weak stem, which grows along the ground, along the ground. अब क्रीपर क्या होते हैं? तो क्रीपर का भी जो स्टेम होता है वो कम वीक होता है, कमजोर होता है। लेकिन और ये जो होते हैं क्रीपर जो होते हैं वह ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं, ग्राउंड के सहारे बढ़ते हैं, वो किसी पे चढ़ते नहीं, वो क्लाइंबर नहीं होते। एक लत जिसको बोलते हैं, हम भाषा में बोलते हैं कि लत निकला हुआ रहता है वही। A plant with the thin weak stem which grows along the ground, ये ग्राउंड पर ही फैलते हैं, ग्राउंड पर ही वृद्धि करते हैं, ग्राउंड से ऊपर नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल GROUD, ग्राउंड, सॉरी GOURD, गॉड, and one more melon, pumpkin, etc. These are example of creepers. Gourd, melon, pumpkin, watermelon, ये सब जो है ना, मस्कमेलन, वाटरमेलन, गॉड, पंपकिन, दीज आर एग्जांपल ऑफ क्रीपर्स। आप लोग देखते होंगे कोहड़ा, देखे पंपकिन मतलब क्या होता है? कोहड़ा, कोहड़ा होता है। गॉड मतलब क्या होता है? कद्दू, लौकी जिसको बोलते हैं। मेलन मतलब समझते हैं खरबूज, तरबूज। ये लोग क्रीपर्स नहीं है, ये लोग क्रीपर्स है। ये लोग क्लाइंबर्स है जो चढ़े, ये लोग ग्राउंड पर ही वृद्धि करते हैं, ग्राउंड पर ही फैलते हैं। और इसलिए मैंने लिखा है which grows along the ground, ये ग्राउंड पर ही फैलते हैं। So these are various types of plants. Now come to the next topic, usage of plant. Usage of plant. यूजेज ऑफ प्लांट्स, हम लोग यूज देखेंगे। प्लांट का क्या यूज है, क्या बेनिफिट है प्लांट का, प्लांट हम लोग का कैसे हेल्प करते हैं ये जानेंगे। ओके, यूजेज का मतलब उपयोग। उपयोग क्या है, प्लांट का उपयोग क्या है, प्लांट से हम लोगों को क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, लिखेंगे दे प्रोवाइड अस fresh air, fresh and clean air to breathe. Secondly, they provide us food to eat, like vegetables, fruits and cereals. Number 3, they provide shelter to animals, birds and insect. I have written 3 uses. First, I will explain these things. First, use of
फर्स्ट यूज ऑफ प्लांट इज दे प्रोवाइड अस फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ। अगर पहला रोल क्या है, पहला इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट का कि प्लांट जो है हम लोगों को फ्रेश और क्लीन एयर देते हैं, हवा सांस के लिए। जो सांस हम लोग लेते हैं, जो सांस हम लोग डेली लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कौन प्रोवाइड कराते हैं? तो फ्रेश हवा को साफ सुथरा करने का, क्लीन करने का काम, ताजा करने का काम कौन करता है? प्लांट करते हैं। दे प्रोवाइड अस फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ। सेकंड, they provide us food to eat like vegetable, fruits and cereals। ये हम लोगों को अनाज देते हैं खाने के लिए, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल देते हैं। तो जितना भी अनाज हम लोग खाते हैं अपने डेली लाइफ में, किससे मिलता है? तो प्लांट से मिलता है। प्लांट इज द मेन सोर्सेस ऑफ फूड फॉर लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, आवास देना, मतलब रहने का सुविधा देना, घर देना। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या आवास। तो हम लोग जानते हैं कि जंगल जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं, प्लांट बहुत सारे पशु पक्षी अपना घर बना के रहते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे जो है प्लांट में रहते हैं, और पक्षियां जो है घोंसला बना के रखती है। दे प्रोवाइड शेल्टर। तो क्या है कि प्लांट जो है वह दूसरे जानवरों को आश्रय देते हैं, आवास देते हैं रहने के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड अस medicines। next is they provide us wood for furniture। next they provide us fiber। they provide us fiber। and last one, they help in conserving the soil। conserving the soil। they provide us medicine। we know that हम लोग को बहुत सारे मेडिसिन जो औषधि जो है वो प्लांट से मिलते हैं। दे प्रोवाइड अस वुड फॉर फर्नीचर। हम लोग जितने भी फर्नीचर घरों में बनवाते हैं अलग, वो सब का लकड़ी किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। दे प्रोवाइड अस फाइबर। वो हम लोगों को क्या देते हैं? तो हम लोगों को फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है कि हिंदी रेशा, जिससे जो है क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। क्लॉथ्स के लिए धागे जो तैयार किए जाते हैं, तो क्लॉथ्स के लिए जो धागे तैयार किए जाते हैं, वो फाइबर हम लोग को किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। जैसे कॉटन प्लांट से, हम जूट प्लांट, कॉटन प्लांट, ये सब क्या है? ये सब फाइबर देते हैं। उस फाइबर को थ्रेड में चेंज करते हैं और फिर उससे जो है सामान बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट, दे हेल्प इन कंजर्विंग द सॉइल। कंजर्विंग एक वर्ड है, कंजर्विंग का मतलब क्या होता है? कंजर्व करना का मतलब होता है संरक्षण देना। संरक्षण देना मतलब बचाना। किसको बचाते हैं? तो प्लांट जो है मिट्टियों को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मिट्टियों का संरक्षण करना, बचाना, ये प्लांट का काम है। आप लोग देखते होंगे जब प्लांट को लगाया जाता है तो प्लांट का जो रूट है, प्लांट का रूट वो मिट्टियों को जोर से जकड़े रहता है, पकड़े जाते हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी जो है, मिट्टी इधर से उधर ना हो। अगर प्लांट ना होंगे, प्लांट अगर नहीं रहेंगे
तो मिट्टी जो है वो जो अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, अपर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ रिमूव अवे, वो रिमूव कर जाएगी बाय द नेचुरल एजेंट लाइक विंड, हेवी रेन, फ्लड। बाढ़ आ गया, भारी वर्षा हुआ, खूब जोर से आंधी तूफान आया, मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगी, फिर नीचे का पत्थर निकल जाएगा। तो प्लांट लगाने से क्या फायदा? प्लांट लगाने से ये फायदा है कि मिट्टियां संरक्षित होती है, बचती है। तो एक जगह जो है प्लांट का जो रूट है वो से जोर से पकड़े रहता, मिट्टी को इधर उधर फैलने, रिमूव होने नहीं देता है। तो these are some uses of plants. So students, in this video we have discussed about various types of plants and we have discussed about uses of plants. In next video we will discuss about some other two topics of this subtopics of these plants. All of you will read this chapter. Thank you.